اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ محمد مدنیۃ وہی 38 آیۃ و 4 رکوعات۔ سورہ محمد مدینے میں نازل ہوئی اور اس میں 38 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ سورۃ محمد، سورہ محمد، مدنیۃ، مدنی ہے یعنی مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ وہی 38 آیہ، اور اس میں 38 آیتیں ہیں۔ وا اور ہیا اس میں 8 وا اور 30 38 38 اور 8 38۔ وہی 38 اور اس میں 38 آیتن آیتیں ہیں، اور اس میں 38 آیتیں ہیں۔ و4 اور 4 رکوعاتن رکوع ہیں، اور اس میں 4 رکوع ہیں۔ سورۃ محمد مدنیۃ وہی 38 آیۃ و 4 رکوعات۔ سورہ محمد کیا ہے؟ مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 38 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ الذین جو لوگ کفروا منکر ہوئے یا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم گم کر دی اللہ نے ان کے اعمال۔ یعنی جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، یعنی جو لوگ کافر ہیں اور جنہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو گم کر دیا۔ یعنی جو بھی انہوں نے نیک عمل دنیا میں کیے، اللہ رب العزت نے آخرت میں ان کے وہ سارے عمل گم کر دیے، کھو دیے، ایسے کر دیے جیسے کہ انہوں نے کیے ہی نہیں تھے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے خود بھی کفر کیا، یعنی اللہ کو نہیں مانا، اور دوسروں کو بھی اللہ کو ماننے سے روکا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، اور ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان لائے، کیونکہ قرآن کریم کیا ہے؟ حق ہے ان کے رب کی جانب سے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے دور کر دیا ان سے ان کی برائیوں کو، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور سنوار دیا ان کے حال کو۔ یعنی ابھی بتایا گیا تھا کہ جو لوگ کافر ہیں، یعنی جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے دوسرے لوگوں کو بھی روکا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنے بھی نیک عمل انہوں نے کیے تھے، ان کو سب کو ایسا کر دیا قیامت کے دن، ایسا کر دے گا قیامت کے دن کہ جیسے انہوں نے وہ کیے ہی نہیں تھے۔ اس کے برخلاف جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں اور قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک حق اور سچی کتاب ہے، تو اللہ رب العزت ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت ان کی برائیوں کو بھی مٹا دے گا، یعنی ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور ان کے حالات کو سنوار دے گا۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ یہ کس وجہ سے کرے گا اللہ رب العزت؟ کیونکہ جن لوگوں نے کفر کیا، ذَلِكَ یہ اس وجہ سے ہوگا، بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، وَاتَّبَعُوا الْبَاطِلَ اور باطل کی پیروی کی، یعنی باطل کو فالو کیا، جھوٹ کے پیچھے پیچھے چلے، وَأَنَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا الْحَقَّ اور یہ کہ ایمان والے جو ہیں انہوں نے پیروی کی ہے حق کی، یعنی انہوں نے حق کو فالو کیا ہے، دین اسلام کو فالو کیا ہے، قرآن کو فالو کیا ہے، مِن ربہم جو ان کے رب کی جانب سے ہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ رب العزت مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ ایک بار پھر سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو گم کر دیا۔ الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اضل گم کر دیا اللہ نے، اعمالہم ان کے اعمال کو۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، اللہ نے ان کے اعمال کو گم کر دیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم اور جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات
और नेक अमल किए, व आमनु और ईमान लाए, बिमा नुज़्ज़िला उस पर जो कि नाजिल किया गया, अला मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वहुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम और वो हक़ है उनके रब की जानिब से, कफ़रा अनहुम कफ़रा मिटा दिया, अनहुम उनसे, सय्यातिहिम उनकी बुराइयों को, व अस्लहा बालहुम और दुरुस्त कर दिया उनके हाल को। ज़ालिका ये इस वजह से किया, बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल इसलिए कि बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इसलिए कि जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, इत्तबउल बातिल उन्होंने बातिल की पैरवी की, बातिल को फॉलो किया, व अन्नल्लज़ीना आमनु इत्तबउल हक़्क़ मिर रब्बिहिम और ये कि जो ईमान लाए, इत्तबउल हक़्क़ मिर रब्बिहिम उन्होंने फॉलो किया है हक़ को जो उनके रब की जानिब से है। कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करता है लोगों के लिए मिसालें। फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब आगे बताया गया कि जब तुम मुलाकात करो काफिरों से तो गर्दनें मारो, हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ यहाँ तक कि जब खूब कत्ल कर चुको उनको तो मजबूत बांध लो क़ैद। फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदान हत्ता तज़ाल हर्बु औज़ारहा बस उसके बाद एहसान कर दो या कि फ़िदिया लेकर छोड़ दो यहाँ तक कि जंग अपने औज़ार को रख दे। इस आयत करीमा में ये बताया गया है कि जब काफिरों से मुठभेड़ हो जाए, यानी काफिरों के और तुम्हारे दरमियान किसी दीनी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, तो उस वक्त तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम गर्दनें मारो, यानी इस्लाम को अगर कोई दबाना चाहता है, अगर तुम्हें इस्लाम के ख़िलाफ़ वरगलाना चाहता है, या अगर तुमसे इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कलिमा कुफ्र कहलाना चाहता है जो कि तुम्हें कुफ्र के गड्ढे में धकेल सकता है, या ये कि इस्लाम को किसी भी तरीके से ज़ेर करना चाहता है, तो ऐसे वक्त में तुम पर ज़रूरी है कि तुम क्या है गर्दनें मारो। हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम यहाँ पर हद बताई गई कि जब तुम खूब खून रेसी कर चुको, यानी जब खूब गर्दनें मार चुको, फ़शुद्दुल वसाक़ तो क़ैद को मजबूत बांध दो, यानी फिर क़ैद कर लो। फ़इम्मा मन्नन बअदु उसके बाद या तो एहसान कर दो, यानी उनको ऐसे ही छोड़ दो एहसान करके जिन्हें क़ैद किया है, व इम्मा फ़िदान और अगर तुम्हें लगे कि ऐसे नहीं छोड़ना तो उन्हें फ़िदिया ले लो। हत्ता तज़ाल हर्बु औज़ारहा यहाँ तक कि जंग अपने हथियार को रख दे, यहाँ तक कि जंग पूरी तरह से क्या है ख़त्म हो जाए, दी एंड हो जाए। ज़ालिका वलौ यशाअल्लाहु लंतसर मिनहुम ये इस वजह से है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता तो उनसे बदला ले लेता। ज़ालिका ये इस वजह से है, वलौ यशाअल्लाहु और अगर अल्लाह चाहता, लंतसर मिनहुम तो खुद उनसे बदला ले लेता, वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद और लेकिन वो चाहता है ताकि आजमाए तुम में से बाज़ को बाज़ से, यानी अल्लाह ताला चाहे तो जो भी अल्लाह के इस्लाम के ऊपर कुछ ऐसी हरकत करे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नागवार हो, नापसंद हो, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हो, अगर अल्लाह चाहे तो उसका बदला खुद ले सकता है। लेकिन क्योंकि वो हम मोमिनों को, हम मुसलमानों को आजमाना चाहता है कि कौन अल्लाह के दिन की सरबुलंदी के लिए आवाज़ उठाता है, कौन अल्लाह के दिन की सरबुलंदी के लिए अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार खड़ा रहता है। तो यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में बताई है। ज़ालिका ये हुक्म आप सुन चुके हैं, ये किस लिए है, वलौ यशाअल्लाहु लंतसर मिनहुम अगर अल्लाह चाहता तो खुद उनसे बदला ले लेता, वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद और लेकिन वो चाहता है ताकि आजमाए तुम में से बाज़ को बाज़ से। वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम और जो लोग कत्ल किए गए अल्लाह के रास्ते में, यानी जो शहीद हो गए अल्लाह के रास्ते में, फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम अल्लाह हरगिज़ गुम नहीं करेगा उनके अमाल को, यानी जो लोग कत्लो क़िताल करने लगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिन की बका के लिए लड़ने लगे, इस्लाम की बका के लिए लड़ने लगे, कत्लो क़िताल करने लगे, अगर वो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए तो ऐसा नहीं है कि उनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बल्कि उनके इस अमल का सिला क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर बिज़रूर अता फ़रमाएंगे। वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि और जो लोग कत्ल किए गए अल्लाह के रास्ते में, फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम बस अल्लाह हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा, हरगिज़ गुम नहीं करेगा उनके अमाल को। सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम अनक़रीब उनको राह देगा और दुरुस्त करेगा उनके हाल को। वयुदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम और उनको दाखिल करेगा ऐसी जन्नत में जिसकी उनको पहचान करा देगा। यानी बताया ही गया है कि अगर कितनी भी अच्छी जगह हो, कितनी भी खुशनुमा जगह हो, कितना भी खूबसूरत बाग हो और कितना ही खूबसूरत शहर या खूबसूरत पार्क हो, लेकिन अगर वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते तो फिर भी मज़े में किरकिराहट आती है।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को ऐसी जन्नत में दाखिल फरमाएगा कि जहाँ पर वहाँ पर जो भी लोग होंगे तो वो सब उसको जन्नती को ऐसा महसूस होगा कि उनकी न जाने बरसों से जान पहचान है। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ख़ास इनाम है जन्नतियों के लिए। वयुदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम, और उनको दाखिल करेगा ऐसी जन्नत में जिसकी उसने उनको पहचान करा दी होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों से एक बात कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि अगर हम अल्लाह की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। अल्लाह की मदद करने का मतलब ये है कि अल्लाह के दीन को, अल्लाह के इस्लाम की बका के लिए क्या है, हर वक्त तैयार रहना और उसके दीन की मदद करते रहना। वयुसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद तो करेगा ही, साथ ही साथ तुम्हारे कदमों को भी जमा देगा। वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम, और जो लोग काफिर हैं उनके लिए तो मुंह के बल गिरना है। व अज़ल्ल अमालहुम, और अल्लाह उनके अमाल को भी ज़ाय कर देगा, अल्लाह उनके अमाल को भी गुम कर देगा। यानी जो काफिर हैं उनको क्या मिलेगा क़यामत के दिन? ओनली मुंह के बल गिरा दिया जाएगा उनको, और उनके अमाल को, जो उन्होंने नेक अमल दुनिया में किए, किसी की हमदर्दी की, खैर ख्वाही की, किसी भी तरीके की कोई मदद की या कोई भी नेक अमल किया, तो उनके इन अमाल का क़यामत के दिन उन्हें ज़रा बराबर भी अज्र नहीं अता किया जाएगा। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अमालहुम, इसकी वजह क्या होगी कि उनके नेक अमल भी ज़ाय कर दिए जाएंगे, क्योंकि बिअन्नहुम करिहू, उन्होंने नागवार समझा, मा अंज़लल्लाहु, उस चीज़ को जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, यानी कुरान करीम को उन्होंने नागवार जाना। फ़अहबत अमालहुम, सो उसके बदले में, उसकी पादाश में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अमाल ही रायगा फरमा दिए। अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या वो सैर नहीं करते ज़मीन में कि वो देखें कि कैसा रहा उन लोगों का अंजाम जो उनसे पहले थे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको एक इबरत दिला रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है कि क्या वो ज़मीन में देखते नहीं हैं, मुल्क में घूमते फिरते नहीं हैं, कि जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को तोड़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुफ्र किया, क्या वो देखते नहीं हैं कि उनका क्या हाल रहा है, क्या अंजाम रहा है उनका, उन लोगों का? अगर उनके अंदर ज़रा बराबर भी अकल है तो वो अपने से पहले लोगों के अंजाम को देखकर ही इबरत हासिल कर सकते हैं, नसीहत हासिल कर सकते हैं, नसीहत पकड़ सकते हैं। अफलम यसीरू फिल अर्दी फयंजुरू कैफ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अफलम, क्या नहीं, यसीरू, वो सैर करते हैं, फिल अर्दी, ज़मीन में या मुल्क में, क्या वो मुल्क में नहीं घूमते फिरते? फयंजुरू कैफ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि वो देख लें कि कैसा रहा उन लोगों का अंजाम जो उनसे पहले थे। दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिल काफ़िरीन अमसालुहा, अल्लाह ने उन पर हलाकत डाली, यानी उन लोगों पर जो उनसे पहले थे, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, अल्लाह ने उन पर भी क्या है, हलाकत डाली। वलिल काफिरीन अमसालुहा, और काफिरों को क्या मिलते हैं? ऐसी ही चीज़ें मिला करती हैं, और काफिरों को ऐसी ही चीज़ें मिला करती हैं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू, क्योंकि अल्लाह मददगार है ईमान वालों का। ज़ालिका, इसलिए कि बिअन्नल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मौलल्लज़ीना, मददगार है उन लोगों का, आमनू, जो ईमान लाए, इसलिए कि अल्लाह ईमान वालों का मददगार है। व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम, और ये कि काफिरीन, उनका तो कोई मददगार ही नहीं है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि आपको इसका तर्जुमा समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह कल हम दूसरे रुकू का तर्जुमा और थोड़ी बहुत तफसील